Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dias. As you know, we have been taking efforts to develop your English communication skills, English fluency, and English speaking. So, what does it require? That we have been discussing. In last video, we discussed about how to talk about the past. जो last video था, तो past के बारे में discuss हो गया. Now, my dear friends, how to talk about present time. See, time कौन सा है? Present है. What is the time? Present time it is. Now, in this present time, talking about present means how to talk. Which verb forms we have to use. As I declared, that verb is totally controlled by time. Means we have to use specific verb forms. सही है? Specific verb forms. So which verb forms we have to use? How to decide which verb form we have to use in present? My dear friends, as I already told you, and most of the time I tell this, yes, while talking, we have to think about two things. Number one, that is called as a time, that is called as a present time, means time. And number two, that is called as a state of action. Now in present time, we have to discuss about 4 states of the action, which we use in our day-to-day communication कि जिसे हम हर दिन यूज़ कर लेते हैं. चलो प्रेजेंट की ही बात है, लेकिन प्रेजेंट में बातें करने के लिए वर्ब के मीन्स एक्शन के 4 स्टेट्स हमें समझना होगा. वो कौन से हैं 4 स्टेट्स, कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, कौन से वर्ब फॉर्म होते हैं, ये सभी की जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ. तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट में बात करना है तो आज ही आप बात कर पाओगे. यस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ प्रेजेंट एंड हाउ टू टॉक in present by using 4 states of action. So number 1, let's see. Present state means what? Routine state. That action takes place repeated. Means what is the state? Repeated actions. Actions which happen repeatedly. मीन्स जो एक्शंस रूटीन होती है, हर दिन होती है, बार बार होती है, ऑफन होती है, ऑलवेज होती है, समटाइम्स होती है. राइट? मीन्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, occasionally, sometimes, occasionally, rarely, very often. Right? Never. What are these? Just I'm talking about the frequency of action. जब कभी भी हमें एक्शन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्ट्रेस देना है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी किसी को बताना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज की हो सकती है, ऑफन की हो सकती है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी टाइम, एवरी मंथ, ऐसे भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है. तो जब कभी भी एक्शन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. चलो क्या बोलने जा रहा हूं? वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सही है, एक दिन की बात नहीं है. दिस इज माई रूटीन, दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई रूटीन, दिस इज माई स्किल. सो मेरा स्किल है, तो एक दिन का नहीं है, एवरीडे ए रिपीटेड है. आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. लेकिन यही स्पीक को हमें यूज करना है ही, सी, इट, रोहित, ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जब कभी भी हम इसे यूज करने जा रहे हैं, एट दैट मोमेंट वी आर गोइंग टू ऐड यस और ई एस
after this verb. For example, he speaks, she understands, he takes his dinner, lunch or the breakfast on particular time, he attends the classes regularly, I attend the classes regularly, मैं हर दिन मेरे क्लासेस अटेंड करता हूँ। फोकस देखो ना, हर दिन के ऊपर है, मीन्स हर दिन ए एक्शन रिपीटेड है। She comes to class late every day. Repeated action है। He speaks English. Repeated action is there. He gets up early in the morning and goes to gym, goes for exercise. What is this? A repeated action is there. I don't eat non-vegetarian food. Repeated action is there. He eats non-vegetarian food. Repeated action is there. कभी मुझे पूछना है क्वेश्चन रिपीटेड एक्शन के बारे में, मैं पूछ लूँ डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, क्या आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो क्या, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। क्या आप खाते नहीं हो क्या, डोंट यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, डोंट यू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, ये एस नो टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस करते समय ये डू और ये जो डज होता है हेल्पिंग वर्ब्स बोल के हमें लेने होते हैं, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन हमें लेने पड़ेंगे और पूछना पड़ेगा डू यू, डोंट यू। जब कभी भी सब्जेक्ट ही, सी, इट, रोहित ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो क्वेश्चन में भी हमें डज का यूज करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा डज ही अटेंड। डज आने के बाद देखो वो जो अटेंड है ना उसका यस निकल कर जा रहा है। डज ही अटेंड हिज क्लासेस रेगुलरली, डजंट ही अटेंड his classes regularly, क्या वो उसके क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करता है, राइट। जब कभी भी WH क्वेश्चन पूछने हैं, वेयर डू यू लीव, हर दिन के लिए पूछ रहा हूं, वेयर डज ही लीव, वो कहाँ रहता है, रिपीटेड एक्शन के लिए मैं पूछ रहा हूं। यस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही स्पीक। सो व्हाट इज दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल, वी आर टॉकिंग अबाउट somebody's नेचर, किसी के नेचर के बारे में, किसी के स्किल के बारे में, किसी के हैबिट के बारे में और हॉबी के बारे में, और उसकी जो रिपीटेड एक्शन होती है, आदत होती है, राइट, जो शेड्यूल होता है, लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जब कभी भी हमें एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव के लिए डोंट और डजंट, उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चंस के लिए एट द बिगिनिंग डू और डज, WH क्वेश्चन करने के लिए डू और डज के पहले एक WH वर्ड। इसी तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज कर लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन प्रेजेंट में ही नाउ की एक्शन बताने की जरूरत होती है। एक्शन विच टेक्स प्लेस नाउ, एक्शन जो नाउ होती है, अभी होती है, इसी वक्त हमारे आंखों के सामने बातें करते समय कुछ तो मूवमेंट शुरू है, एक एक्शन शुरू है, वो मूवमेंट, वो एक्शन, यस, यही बताने के लिए in English what we are going to use, we are going to use am, is, are plus verbs ing, means continuity of the action. We are going to express by using am, is, are and verbs ing. That is called as a present continuous tense. Now you have to remember everyday action is different and at this moment action is continue, that is different. I teach English, that is my everyday action, routine action. लेकिन जब मैं बोलूँ I am teaching English, this is my at this moment's action, this is my now's action. So that's the difference you have to remember. That difference is between state, एक जो है repeated, permanent, habitual, लेकिन जब present continuous की बात होगी तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा action अभी continue है, उसके पीछे मुझे मालूम नहीं है, उसके आगे I don't know exactly, लेकिन अभी continue है। She is crying loudly, means आपके कानों में उसकी आवाज गूंज रही है रोने की। So you can say that she's crying loudly. Look, I'm speaking in front of you. You all, means you people are listening me
केयरफुली, यू नो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव्स बहुत ही ईजी है। आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। सो दीज आर द नेगेटिव्स। आर यू कमिंग टू द क्लास, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, वाओ, क्या तू अंग्रेजी इस इंग्लिश में बात कर रहा है? What is this? Question मैं पूछ रहा हूँ। Aren't you going there? Aren't you attending today's lecture? Aren't you listening music? Why are you crying? Why aren't you listening the lecture carefully? What is this? Yes, कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्रेजेंट की ही बात है, लेकिन एक्शन कंटिन्यू है। दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में एक ही फर्क है। सिंपल प्रेजेंट रिपीटेड होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी शुरू है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट में भी देखो और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्शन खत्म हो चुकी है पास्ट में। देखो, एक्शन खत्म हो चुकी पास्ट में, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस अभी है, एट दिस मोमेंट है, राइट? उसका रिलेशन अभी के साथ है। सिचुएशन मैं आपको बता दूं, आपके फ्रेंड्स मूवी निकल रहे हैं, जाते जाते आपको पूछ रहे चलो हम मूवी जाएंगे, तो आप बोल रहे हो कौन सी मूवी देखनी है? तो आपके फ्रेंड्स बोल रहे चलो हम यस ये XYZ मूवी हम देख लेते हैं, तो आप बोलते हो ओ मूवी, अरे मैंने देखा है हो, भले वो आपने पास्ट में देखा है, लेकिन उस एक्शन का जो इम्पैक्ट है अभी के ऊपर है। तो ऐसे जब आपको बातें करनी होती है, इस समय हमें यूज करना पड़ता है व्हाट, हैव, हैज। एक तो हैव नहीं तो हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड इसके सामने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज कर लेते हैं। आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, आई हैव जस्ट हैड कप ऑफ टी। अभी अभी मैंने चाय ली है। भले वो चाय आपने पास्ट में ली है, लेकिन उससे आप रिलेट कर रहे हो अभी के साथ, और उसका इम्पैक्ट है अभी आपको चाय नहीं लेना है, इसलिए आप बोल रहे हो कि अभी अभी मैंने चाय ली है। भले वो पास्ट में हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस का मतलब ही फिनिश्ड एक्शन होती है, लेकिन प्रेजेंट के साथ रिलेट है, इसलिए उसके पीछे आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं। हैव यू अटेंडेड टुडेज क्लास? क्या आपने आज का क्लास अटेंड किया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू टेकन योर लंच, डिनर और द ब्रेकफास्ट, वॉट एवर? हैवंट यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट? क्या आपने आपका ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया? ये बात करने का एक अंदाज होता है। जैसे जैसे सिचुएशन, कभी क्वेश्चंस पूछने, कभी नेगेटिव में बात करनी होती है, कभी यस नो टाइप का क्वेश्चन, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हमें पूछना होता है, क्योंकि वी टॉक विथ ईच अदर। और बातें करते समय ये सभी टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू यूज, यू नो। हैव यू रीच्ड देयर? एट व्हाट टाइम हैव you reached there? आप वहां पे कब पहुंच चुके हो? What have you eaten today? आज तूने क्या खाया है? How have you completed that work? तूने वो काम कैसे कंप्लीट किया है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शन पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन रिलेशन नाउ के साथ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार हम जो भी कर लेते हैं वो एक्शन कुछ लंबे टाइम के लिए चलती है, और बहुत बार हमें एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना जरूरी होता है। देखो ना, मैं यस लास्ट 15 मिनट से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरा फोकस किसके ऊपर है? लास्ट 15 मिनट के ऊपर है। माई फोकस इज देयर लास्ट 15 मिनट्स। तो यही 15 मिनट्स मुझे प्रोजेक्ट करना है ना। ये 6 o'clock से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस 6 o'clock के ऊपर मुझे फोकस देना है। तो इस सिचुएशन में जब कभी भी आपको एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट आपको रेफरेंस देना है और एक्सप्रेस करना है, और एक्शन का आपको ड्यूरेशन देना है, at that moment we have to use have been or has been plus verbs ing। करते आ रहा हूं, 2 घंटे से मैं करते आ रहा हूं, ये 4 साल से मैं करते आ रहा हूं, ये 2016 से मैं कुछ करते आ रहा हूं। रेफरेंस देखो, 4 साल, 2 घंटे, 4 महीने,
2016 से, 4 साल से, यस 2009 से, सुबह से 4 बजे से। देखो 2 टाइप के टाइम्स में आपके सामने बता रहा हूँ। एक होता है यस दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बताना है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 2016, 7 o'clock मॉर्निंग, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो दैट 4 o'clock, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट जब कभी भी मुझे ड्यूरेशन के लिए बातें करनी है तो वहां पे उसके पीछे मुझे फॉर यूज करना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ टाइम के पीछे मुझे सिंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब का आईएनजी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, तो कैसे यूज होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 ईयर्स। देखो मेरा फोकस 20 ईयर्स के ऊपर है तो उसके पीछे मैंने फॉर, क्योंकि 20 ईयर्स एक ड्यूरेशन है। और एक मैं बोल दूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। अब देखो मेरा फोकस है 2001 मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, पॉइंट ऑफ द एक्शन मीन्स पॉइंट ऑफ द टाइम, यू नो दैट। और उसी टाइम का नाम मैंने आपके सामने रखा है, वो है 2001, उसके पीछे सिंस। तो जब कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे सिंस, और जब कभी भी ड्यूरेशन बोल देंगे फॉर। और एक चीज दिमाग में रखना है, ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्रेस करना है, हैव बीन, हैज बीन एंड वर्ब्स आईएनजी, यू नो। जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या रहे तू सुबह से बातें कर रहा है, तू सुबह से बातें कर रहा है, क्या आप सुबह से बातें कर रहे हो? हैव यू बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। कोई मुझे पूछेगा सर सही में आप 2001 से पढ़ा रहे हो अंग्रेजी? सर हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। कोई पूछेगा मुझे 20 साल से पढ़ा रहे हो? ओह माय गॉड, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 ईयर्स? मेरा आंसर होगा यस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 years। नो बोलना है तो बोल सकते हैं, नो आई हैवंट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 years। इन दिस वे यू कैन टॉक। कोई आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डबल एच वाला। कोई मुझे पूछेगा सर कितने दिन से, कितने साल से, हाउ लॉन्ग, कितने वक्त से, कितने साल से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग, देखो हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन पूछ रहा हूं मैं। Since when have you been teaching English? देखो स्टार्टिंग पॉइंट मैं पूछ रहा हूं। In this way I can ask double H question and just I may give answer, you know। I have been teaching English since morning, I have been teaching English what means that for last 20 years or since 2001। That's all my dear friends। yes, simple present की बात होती है, means repeated action की जब बात करनी है तो verb का first form, negatives और questions करने के लिए do और does यूज कर लो। और जब कभी भी अभी एक्शन कंटिन्यू, अभी बात करते समय कुछ कंटिन्यू है, एम इज आर एंड वर्ब का आईएनजी दे दो। उसके बाद जब कभी भी पास्ट में फिनिश्ड एक्शन है वो नाउ के साथ कनेक्टेड है, हैव हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इसी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लो। ओ मैं किया है, मैं कर चुका हूं, वह ऐसे आपको बातें करनी है। और जब कभी भी ड्यूरेशन के ऊपर आपको फोकस देना है या एक्शन के स्टार्टिंग टाइम जो होता है ना, उस स्टार्टिंग टाइम के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर फोकस देना है, तो यहां पे हमें हैव बीन, हैज बीन एंड वर्ब का आईएनजी। और याद रखना है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। ये जो सिंस होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पीछे में, सिंस 2001 और दैट 9 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1947, सिंस 2001, लाइक दिस, यू नो। और जब कभी भी फॉर का यूज होता है तो ध्यान रखना है ड्यूरेशन के साथ हम फॉर यूज कर लेते हैं, फॉर 2 years, फॉर 10 years, फॉर 10 months, फॉर 10 months, फॉर 10 seconds, लाइक दिस, यू नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना याद करो, इतना वीडियो आप ध्यान से देखो। प्रेजेंट में बातें करने के लिए आप कभी भी गलती नहीं कर लोगे। तो प्रेजेंट जब कभी भी बात करना है, जस्ट ट्राई टू recap the things, whatever the things just I have expressed. So thanks a lot my dear friends for patient listening. Just we have discussed about present tense today. In present tense we have discussed about 4 states: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Thank you my dear friends. In next video we shall discuss about all future time and its states, you know. Thank you my dear friends.